أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی سر؟ الحمدللہ ہم اب تک فارم 2 اور فارم 3 پڑھ چکے ہیں۔ فارم 2 یعنی باب تفعیل اور فارم 3 یعنی باب مفعل ہے، اور ان دونوں فارمز میں ہم نے دیکھے تھے ایک حرف کا اضافہ ہوا، مزید فی ہی پڑھ رہے ہیں ہم۔ تفعیل کے اندر فا عین لام کے درمیان میں عین کلمے پہ دو لیٹر آ گئے ہیں ایک ساتھ اکٹھا، تو اس پہ ایک لیٹر کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا باب مفعلہ۔ مفعلہ میں فا اور عین کلمات سے پہلے ایک الف کا اضافہ ہوا، اور اب اسی گروپ میں یعنی کہ پہلا گروپ ہے یہ فارم 2، فارم 3 اور فارم 4، ان کو اکٹھا کر کے ایک گروپ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس گروپ کا آخری ہے۔ یہ اس کے اندر بھی ایک لیٹر کا اضافہ ہوگا، وہ ہے حمزۃ الفتح، اور یہاں حمزۃ الفتح کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد فا کلمے پر سکون آ رہا ہے، ساکنہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے تو حمزۃ الفتح پہلی مرتبہ اور ایک ہی فارم میں حمزۃ الفتح آتا ہے، باقی کسی فارم میں حمزۃ الفتح نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک پہچاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے یہ فارم کو، کہ جب حمزۃ الفتح نظر آئے گا تو یہ فارم 4 ہے، اور جتنے 8 فارم ہیں فارم 2، فارم 3، فارم 4، پھر اس کے بعد پھر 3 فارم آئیں گے اور چوتھا آئے گا، تو 3 فارم میں 2 حرف کا اضافہ ہوگا اور آخری میں 3 حرف کا اضافہ۔ تو ان 8 فارمز میں دراصل قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب افعال ہے۔ اگر موٹے موٹے طور پہ میں کہوں کہ یہ 8 فارم میں سے یہ فارم 4 کتنے پرسنٹ آتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ 60 سے 70% باب افعال کا استعمال، اور باقی کے تمام جتنے 7 فارم ہیں وہ 40% سے نیچے۔ تو اس فارم کو اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے، اور بڑا ہی آسان ہے۔ اس کے ویژول کلو یہ ہے کہ آپ اس کا سانچہ دیکھیں گے تو بنے گا افعلہ، اور اس کا نمائندہ ہے اسلمہ۔ اسلمہ تو ریپریزنٹیٹیو ہے اسلمہ، اس کا مصدری نام خاندانی نام ہے باب افعال، اور اس کا سانچہ ہے حمزہ کے بعد فا عین لام۔ تو یہ غالباً ہے فارم 4، اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا جو پرسنٹیج ہے آیتوں میں آنے کا سب سے زیادہ ہے۔ اس کو ذرا باریکی سے پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ تو یہ خاص اس کا کام ہے کہ یہ پہلے لازم کو متعدی بناتا ہے، یہ پہلی خاصیت ہے اس کی۔ جس فعل میں مفعول موجود ہو اسے ہم متعدی کہتے ہیں۔ آئیے، وعلیکم السلام، ارے تشریف رکھو، آئیے، السلام علیکم، آئیے۔ پہلے لازم کو متعدی بنانا ہے۔ متعدی کی میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے آج کر چکا ہوں کہ جس فعل میں مفعول موجود ہو اسے ہم متعدی کہتے ہیں۔
मुतअद्दी पहचानने का सादा तरीका है, फेल को दो सवाल करिए, क्या या किसे, तो उसमें आपको मुतअद्दी समझ आएगी। फेल मुतअद्दी में फाइल फेल का अमल किसी और पर अंजाम देता है, ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो चलिए बाब इफाल के मुतालिक देखिए। बाब इफाल के माजी में मादे के हरफ के अलावा हमज़तुल खता आता है। यही एक फॉर्म है 8 फॉर्म्स में जिसके अंदर हमज़तुल खता आता है, और उसका नेक्स्ट जो फा कलीमा है वो साकिन है, और माजी का तो ये सिग्नेचर है कि आखिर के कलीमे पे ज़बर आती है। अब ये मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 4 की बनावट मुदारे की एक जैसी। आप जानते हैं अलामत मुदारे 4 है, या का हमजा नून। यहां पर अलामत मुजारे पर फिर से पेश आ रही हूं, यानी कि अब तक हमने जितने फॉर्म पढ़े हैं 2, 3 और 4, तीनों में भी अलामत मुजारे पर पेश आती है। तो ये बनेगा युफ इलू, आइन कलीमे पे फिर जेर आएगी। याद कीजिए हमने पढ़े थे बाब तफील फ़अला युफ़अइलु, फिर पढ़े थे हमने बाब मुफ़अला फ़अला युफ़अइलु। तो ये सब की तीनों की खुसूसियत है, ये 3 फॉर्म जो आते हैं 2, 3 और 4, इनके मुजारे एक ही किस्म के होते हैं। तो कुरान मजीद में आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत अहम फायदा है ये समझने का। और अगर समझो ये जेर जबर हो जाता है, ये जेर अगर जबर हो जाता है तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं मजहूल, ये मजहूल। मजहूल का माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल सही, मजहूल। बाकी ये आपको पहचानने के लिए एक साँचा, बेहतरीन साँचा है, समझ लीजिए ये आसानी से पहचान लेंगे अब, तो यहाँ पे हमज़तुल खता नजर आती है, लेकिन मुजारे का खेल रहता है। पूरे जितने भी हम बात पढ़ रहे हैं मजीद भी के बाद, उसमें मुजारे का सब तमाशा है। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए ये जरा यहाँ पे गौर कीजिए, ये है फेल लाजिम खरजा। खरजा का मतलब है एक गायब मुज़क्कर निकला। अगर हमने यहाँ सवाल करे क्या और किसे, तो दोनों जवाब नहीं मिलते। क्या निकला, किसे निकला, कुछ भी मिलता नहीं। जब आपको कोई चीज मिलती नहीं तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाजिम है, वो निकला। अगर इसी को, अगर हमें ये मफहूम पैदा करना है कि उन्हें अकेला निकला नहीं, बानफ्सी निकला नहीं, लेकिन किसी को लेके गया बाहर, तो उसके अंदर हमज़तुल खता इस्तेमाल करके अखरजा बना लेते हैं, तो उसने निकाला हो जाए। जैसा नज़ला, वो उतरा, उन्हें खुद उतरा, बेनफ्सी उतरा, लेकिन अनजला बोलते ही उसने उतारा हो जाता। तो ये लाजिम है, ये मुतादी है, ये इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। तो इसकी खुसूसियत के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये फेले लाजिम को फेले मुतादी बना। यहां देखिए दखला, अब उन्हें खुद दाखिल हुआ, अकेला दाखिल, वो दाखिल। लेकिन अगर वो कोई अगर डर रहा है आने के लिए अंदर, उसने किसी का हाथ पकड़ के ला लिया तो क्या हो जाएगा, उसने दाखिल किया किसी और को। तो फिर जब हम अदखला पूछेंगे या अखरजा पूछेंगे, सवाल करेंगे अखरजा से, तो क्या और किसे बोल सकते। अखरजा का मतलब किसी को निकाला, और अदखला का मतलब किसी को अंदर लाया। अभी मैंने कहा नज़ला, वो उतरा, अनजला, उसने उतारा। देखिए हलका, उसने, वो खुद हलाक हो गया, वो खुद ही डाइड, लेकिन उसने हलाक किया बनाए तो अहलका। तामा, उसने खाया, खुद खाया, लेकिन अतामा करेंगे तो उसने किसी को खिलाया। समिया, उसने सुना, असना, उसने सुनाया। तो ये मफहूम पैदा करने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान के अंदर ये जो
सिगे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि खरजा ये हमारा काम कंप्लीट नहीं कर रहा था, तो अखरजा बनाना है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उसने निकाला अंधेरों में से, जुल्मात में से नूर की तरफ। तो ये आयत आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। जैसा नजला है, नजला के बाद अंजला, अंजला के अंदर आ जाएगा कि भाई हमने एक बारगी में तौरात और ज़बूर को उतारा, आल इमरान एक बारगी में। लेकिन नज़ल आएगा तो कुरान को उतारा, बातदरीज, एहतमाम से, बहुत ख्याल करके, और वक्तन फवक्तन 23 साल के अरसे में जब जरूरत पड़ा। तो देखिए 3 हो गए हमारा, नज़ला, नज़ला, अंजला। तो ये हम जो है इफ़आल का जो मादा है, यानी कि ये उसके मज़दरी नाम है, और इस नाम पर उर्दू में हम कई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बगैर शुक्रिया बोले अरबी। देखिए इस्लाम, इकराम, इरसाल, इन्फाक, ये तमाम, इनकार, इकरार, इनाम, ये तमाम लफ्ज जो है उर्दू में, थोड़ी बहुत उर्दू आने वाला भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें नहीं पता ये कि ये मजीद ठीक है, ये अरबी से आए। उर्दू पढ़ने वाले अपने ही घाटे पने में रह जाते हैं। उर्दू पढ़ेंगे, बहुत उर्दू पढ़ेंगे, बहुत शायरी करेंगे, थोड़ी शराब पी की शायरी करेंगे, तखय्युल में शायरी करेंगे, वो आसानी से उर्दू वाले अरबी पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं बाप इफाल के खुसूसियात, पिक्युलैरिटी। तो अभी मैंने जैसा अर्ज किया, ये वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ड को ट्रांजिटिव बना देता है, पहले लाजिम को मुताद्दी बना देता है, ठीक है। और एक दूसरी इसकी खासियत भी नोट करके रखिए कि ये एक बारगी में काम करता है। एक बारगी का मतलब है एक ही मर्तबा कर देता है पूरा काम। और इसकी पहचान ये है कि इसकी हमजा तो खता इसके साथ आता है। अच्छा, इसकी गर्दान देखेंगे हम तो बहुत आसान है, अपनी पुरानी गर्दान पढ़ लीजिए, फाला, फाला, फालो, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना। अब इसके साथ कीजिए, अफअला, अफअला, अफअलु, अफअलत, अफअलता, अफल, अफलना, अफलता, अफलतुमा, अफलतुम, अफलती, अफलतुमा, अफलतुन्ना, अफलतु, अफल। यानी बड़ा आसान है, अपने फाला पे बैठ रहा है। इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, ये सीगा बहुत आसान है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये क्या बन रहा है, युफाइल, युफाइलु। दरअसल ये बनना चाहिए किसका, इसका हमजतुल खता यहाँ पे आना चाहिए, यू अफ एलू बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, यू अफ एलू। दरअसल ये बनना चाहिए ओरिजिनली, ये तो हमजतुल खता यहाँ पे आ जाएगा, यू अफ एलू। लेकिन पढ़ने की सहूलत के लिए और अरबों ने सोचा कि ये हमारी बात करने में अड़चन पैदा कर रहा है, तो इसको बोले भाई साहब आपकी जरूरत नहीं है, आप घर को जाओ चाय पी के आओ। और उसको निकाल के बाजू रख दिए और इसको बना दिए युफ इलू। लेकिन ये है, हाँ याद रखो, ये है चाय पीने गया है, ये अभी है। तो हम जो बनाए हैं हमारी सहूलियत के लिए, अरबों ने इसको ऐसा बना लिया। दरअसल ये हमजा यहां आ गया, तो मुजारे बनेगा युफ इलो, युफ इलाने, युफ इलोना, तुफ इलो, तुफ इलाने, युफ इलना, तुफ इलो, तुफ इलाने, तुफ इलोना, तुफ इलीना, तुफ इलाने, तुफ इलना, उफ इलो, नुफ इलो। तो ये हो गए सांचे के मुताबिक इसका काम, सांचे पे बिठा दिए। अच्छा, अब आप चलते हैं आगे, इसकी सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फर्क आता है। ये हो गया नज़ला हामिदुन, नज़ला हामिदुन। तो क्या है भाई, इसका दो चीजें, मुताद्दी बनाता है और मुताद्दी को मुताद्दी दर मुताद्दी बनाता है, और एक बार में काम करता है। नज़ला हामिदुन, हामिद उतरा।
پہلے ہم پڑھے تھے نزلہ حامد خالد. نزلہ ہے تو آپ کو یاد ہے باتدریج ہوا تھا کام، سٹیپ بائی سٹیپ ہوا تھا، اہتمام کے ساتھ ہوا تھا، پرزور طریقے سے ہوا تھا، بڑا خیال کر کے ہوا تھا، اور جیسے وقت کے اوپر ضرورت تھی ویسا ہوا تھا. یہ پڑھ چکے ہیں. اب یہ آ گیا انزلہ. انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بارگی میں اتار دیا حامد نے خالد. علیما اس نے جانا، علیما حامد القرآن، حامد نے جانا قرآن کو، حامد نے کچھ جانکاری حاصل کی. علّمہ حامد القرآن خالدا، یہ آ گیا متعدی در متعدی ہو گیا. اس نے سکھایا، کس نے سکھایا؟ حامد نے سکھایا. کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ خالد کو. تو یہ متعدی در متعدی. اور اگر ہم نے کہا عالم حامد القرآن خالدا، عالم، تو اب اس نے جانکاری دیا حامد کو قرآن کے بارے میں. کس نے دیا؟ حامد نے دیا. کس کو دیا؟ خالد کو دیا. اس طرح سے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اب ذرا غور فرمائیے، انذرتو، یا پھر یہاں پہ دیکھیے فانذرتم نارن. تو اب یہاں پر دیکھنا ہے ہم نے، انذار کا مطلب ڈرانا ہے. تو یہاں پہ میں ڈرا ہوں گا یا میں نے ڈرایا؟ اگر میں ڈرا ہوتا تو نظر آتا تھا. یہ فا کے بعد حمزۃ الخطا دکھ رہی ہے آپ کو، عین کی منڈی والی. یہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جانا کہ یہ متعدی بنا دیا اس نے. کس کو بتایا؟ تم کو. کم کون ہے؟ تم سب کو. تم سب کو میں نے ڈرایا تم سب. اب دیکھو، اخرجو جمع کا صیغہ ہے، اور خرجو یہ اپنا ثلاثی مجرد ہے. اور یہاں پہ آ گئے یہ اخرجو. تو وہ نکلا ہو جائے گا یا اس نے نکالا ہو جائے گا؟ دونوں ماضی نا. یہ اخرجو انہوں نے نکالا. نہیں، اب آپ ذرا خرج، غور کیجیے. ہاں برابر ہے. اخرجو خرجو کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہوں نے نکلا. نکالا، خرجو وہ نکلے. نہیں، ہاں وہ نکلے. یہ شاباش. ثلاثی مجرد ہے نا خرجو استاد وہ جی. سب نکلے. خرجو خرجو وہ وہ نکلے. سب نکلے. اور ہاں یہاں پہ وہ سب انہوں نے نکالا. نکالا. شاباش. اب دیکھو یہ کیا ہے؟ تسمیوں. یہ تسمیوں، اور یہ کون ہے؟ تسمیوں. اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ پیش دیکھو مضارع ہے. مضارع اور مضارع ہے. کا علامت مضارع پہ یہاں پہ زبر ہے. زبر آتا ہے تو یہ اپنے کو یاد ہے یہ ہے ثلاثی ہو گیا. مجرد سے ہے. ہاں، اور یہ تو سے آ گیا تو اس کا مطلب یہ مزید فی سے ہے، مزید فی افعال سے سے ہے. ہے. جی، ہاں، تم سب سناتے ہو. سناتے ہو. اور یہ تم سنتے ہو. تم سنے. سنتے ہو، سنے کے ساتھ تم سنتے سنتے ہو، ہو. ساری مضارع. تو دونوں میں فرق کرنے کا طریقہ میں بتانے کے لیے یہ بتا رہا سلائیڈ آپ کو. یہ دونوں میں کیا دکھ رہا اپنے کو فرق؟ خالی یہاں پہ دیکھ لیں گے تو پیش نظر آیا. پیش یہ پیش اپنے کو ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ ارے یہ تو اپنا مزید فی سے ہے. ہاں، یہ زیر یہاں پہ غلط آ گیا تھا. سمیا سے تھا، سمیا یسماؤ. یسماؤ تسماؤ تسماؤ اسماؤ نسماؤ. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری اس کی، پہلے ہم کر کے آتے ہیں سرصغیر. یہ دیکھو اب یہ بنے گا سرصغیر اس سے. اسلم، اس نے رجوع کیا. یسلمو وہ رجوع کرتا ہے. اسلامن افعالن پہ مضارع بیٹھ گیا.
और ऐसा करने वाला कौन है? मुस्लिमुन। मुस्लिम। आप जानते हैं कि मुजारे का सिगा लिया जाता है, उसको मीम पेश मुंह लगा देते हैं और ऐन कलीमे पे ज़ेर देते हैं तो इसमुल फाइल बन जाता। अच्छा, अगर हम मजीद इसके अंदर माजी मजहूल में जाते हैं तो फोइला पे आता है मुस्लिमा। मुस्लिमा रुजू किया गया वो, और मुजारे बनेगा युस्लमु। देखो यहाँ पे युस्लिमु युस्लमु। अब इसको ही पकड़ के इसको मीम पेश मुंह कर देंगे तो मुस्लमुन हो जाएगा। मुस्लिम। अच्छा, इसका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसका अम्र बनाएंगे तो इसका हमज़तुल वस्ल लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर इसके लाम कलीमे पर सुकून करते हैं और इसका अलामत मुजारे गिराते हैं तो पढ़ना नहीं आता, तो हमको हमज़तुल वस्ल लाने की जरूरत नहीं है। हमज़तुल खता अपना घर का आदमी है, चाय पीने गया था, उसको बुला लिया, ये हो गया अस्लिम। अस्लिम यानी कि तू रुजू कर, ला तुस्लिम, तू मत रुजू। ये इस तरह से इसके मुख्तलिफ चीजें बचेंगी। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, आसान है। खाली इसके ऊपर ध्यान ये देना है आपको कि इसका हमज़तुल खता पे नजर रखना है। चलिए, अगर आपको कुछ इसके मुतालिक पूछना है तो बोलिए। पढ़िए आप। अरसलना नूहन इला कौमिही। तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा हमज़तुल खता मुंडी दिख रही है इसकी। जी सर, जी सर। अरसल। फेल माजी है, मादा ये है, नहनु फाइल है, बाबी फाल्स है। हमने भेजा, यहाँ पे जबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये मफूल है। फिर ये इला आ गया, इसका मतलब हर जर है। और किस तरफ भेजा गया? कौम, उसकी कौम की तरफ। ये जार मजरूर हो जाएगा और ये खुद मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाएगा। ये डबल, ये हो जाएगा जारुन व मजरूरुन, वह हुआ मुदाफ मुदाफ इलैह। तो मुकम्मल बनेगा हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। इस तरह से आप इसका एनालिसिस कर पाओगे। तो इसका बोलिए फाइल कौन है? ना है, नहनु है। और फेल कौन सा है? माजी है। और ये हो गया मफूल, और ये हो गया मुताल्लिक़ फेल। ठीक है, ये तमाम मिलकर इस तरह से आयत बन जाती है। युखरिज, युखरिजुहु मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर। फिर से कीजिए, इसमें यहाँ पे या दिख रही है, पेश वाली दिख रही है, तो मुजारे है। खरजा इसका मतलब है वो निकालता है। किन्हें निकालता है? उन्हें। फिर यहाँ पे क्या है? ये मफूल है, हुम। मिनज़्ज़ुलुमाति मुरक्कब जारी है, मुताल्लिक़ फेल है। और एक आ गया मुताल्लिक़ फेल का मुरक्कब जारी, इला नूर। वो निकालता है उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ। अंजिल, अमर होगा ना सजिए, अंजिल। ये अमर होगा ना? जी। अगर यही नज़ला का अगर हम बनाते हैं, अगर मजहूल बनाते हैं, अगर सुलासी मुजर्रद है तो कैसा बनेगा? इंजिल बनेगा। ये दोनों फर्क करना सीखो। यहाँ पे हमारा हमज़तुल खता लाए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था? नज़ला यनज़िलु। ये हाँ, पहले अपना मुज़र्रद को देखना। नज़ला यनज़िलु, यनज़िलु, नज़ला
यंजिलु, यंजिलु तंजिलु, तंजिलु लेंगे हम, लाम कलमे पे सुकून देंगे, ता निकाल देंगे तो सुला अपने को पढ़ना नहीं आ रहा, इसलिए हमजातुल वस्ल लाएंगे और उसको जेर देंगे कि तो आइन कलमे में जेर है तो इंजिल होगा, इंजिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तुम उतरो हो जाएगा, यहाँ पे तुम उतारो हो जाएगा। दोनों में फर्क महसूस करो, ये शॉर्टकट्स याद रखो। ये हमजातुल खता पे ही समझ जाना कि ये बाबिफाल है, और यहाँ पे जेर लिखा तो समझ जाना ये सुलासी मुजर्रद है अपना, क्योंकि इसके साथ पे हम क्या कर रहे हैं, हमजातुल वस्ल इस्तेमाल करते हैं। बाप दरबार से आता है। अब ये हमजातुल इस्तिफाहम है, सवालिया, सवाल के आता है लिए जुमलतुल इस्मिया है, तुस्मिओ फिर से आ गया, सुना, सुना सकते हो, सुना सकते हो, बहरो, बहरों, ला तुस्मिओ, तम्मा, नहीं सुना सकते हो, आप नहीं सुना सकते हो, बहरों को पुकार। तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस है ये महसूस करने के है, यहाँ पे पेश आ रहा है, यहाँ पे जबर आ रहा है। बहरे नहीं सुनते, सुनते बन गया, ये सुनाते। यहाँ पे खाली अलामत मुजारे पर पेश है, यहाँ पे अलामत मुजारे पे जबर है। ये बारीकियां देखो खाली, बस समझो। यहाँ पे अलामत मुजारे पे पेश है, उसके मुताबिक इसका मफहूम बदलेगा, उसके मुताबिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अलामत मुजारे पे जबर है, यहाँ पे अलामत मुजारे पे पेश है, तो यहाँ पे हलाक होता है, यहाँ पे हलाक करता है। ताकि वो हलाक करे, हाँ, ताकि वो हलाक हो जाए, खुद खुद हलाक हो जाए। ठीक है, तो आप इसका डिटेल लेते हैं हाफिज साहब की तरफ से। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, आइए जनाब। अरे आराम से, आराम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है सुलासी मजीद फी के अंदर बाबिफाल। बाबिफालुन, इसके पहले के जो दो अबवाब हमने पढ़े वो कौन से हैं? बाब तफील मुफाइला, बाब तफील और बाब मुफाअला। मुफाइला। इसका एक एक एग्जाम्पल माजी और मुजारे का। अल्लमा, बाब तफील में अल्लमा, युअल्लिमु, युअल्लिमु। तालीमन, और इसका मस्दर क्या बनेगा? तालीमन। तालीमन। बाब मुफाअला के अंदर उसका एग्जाम्पल उसका जाहदा। जाहदा, युजाहिदु,
युजाहिदु जिहादन मजदर और इसका मुजाहिदतन दो है। दो है इसके मजदर, मुजाहदतन या फिर जिहादन जिहादन। और बाप तफील को इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक क्या उसका नंबर है, नाम क्या है? फॉर्म 2 फॉर्म है। 2। और बाप मुफाला फॉर्म 3 फॉर्म 3। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाब इफाल, और बाब इफाल का ये है फॉर्म 4। 4 फॉर्म 2 है बाब तफील, फॉर्म 3 है बाब मुफाला, और फॉर्म 4 है बाब इफाल। तो बाब तफील के अंदर सुलासी मुजर्रद से, 3 हरफी फेल से सुलासी मजीद फी के अंदर जब लाया जाता उसको, तो सबसे पहले बाब तफील के अंदर तब्दीली कहाँ आती है और क्या चीज उसका इजाफा होता? एन कलमा डबल हो आइन जाता है। कलमा डबल हो जाता आइन है, आइन कलिमा कलमे पर तस्दीद आती डबल डबल आ हो जाता जाता है, है। जो भी डबल आइन कलीमे पे हर्फ होगा वो डबल हो जाएगा और उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी। तस्दीद है। तो ये है तस्दीद बाब हो जाएगी। तफील के अंदर। और बाब तफील की खुसूसियात क्या है? किसी भी शिद्दत काम को लाजिम से मुताद्दी करता है, लाजिम जी सबसे पहले लाजिम से मुतादी, मुताद्दी से दर मुताद्दी, मुताबिक करता है। मुतादी है तो दर मुतादी, बार बार एहतमाम से, शिद्दत बार बार से, एहतमाम के बतदरीज। साथ, बतदरीज। ये है बाब शिद्दत तफील की खुसूसियात। बतदरीज। और उसके अंदर जो हर्फ का इजाफा हुआ वो आइन कलीमा डबल हुआ। और बाब मुफाला के अंदर इसकी खुसूसियात और इसके अंदर इजाफा। अलीफ का इजाफा, सबसे पहले अलीफ अलीफ का इजाफा हुआ फा कलीमे के बाद। और इसकी खुसूसियात क्या है? मुफाला, एक दूसरे के मुकाबला, मुकाबला, जी मुकाबला, एक दूसरे की आपस में मुकाबला, शिरकत दोनों की। तो यह है बाब मुफाला। जी। अब तीसरा जो है आज हम फॉर्म 4 पढ़ने वाले हैं, बाब इफाल, जो सर ने बताया अभी। उसकी खुसूसियात सिर्फ ये है कि फेल लाजिम को मुताद्दी बनाता है। सबसे पहली चीज फेल लाजिम को मुताद्दी बनाता है। और दूसरा ये है कि जैसा बाब तफील के अंदर बातदरीज एहतमाम के साथ काम हुआ, बार बार काम हुआ, वैसा बाब इफाल के अंदर नहीं है। बाब इफाल के अंदर एक बारगी में काम होता, किसी भी काम को एक बारगी में। तो ये है बाब इफाल की खुसूसियात। अब दूसरी चीज ये है कि बाब इफाल के अंदर क्या इजाफा हुआ, सुलासी मुजर्रद से मजीद फी में आने तक का सफर जो हुआ, उसके अंदर इजाफा क्या हुआ, किस हर्फ का इजाफा हुआ और कितने हर्फ का इजाफा हुआ? हमजतुल कता, सिर्फ स्टार्ट हमजतुल का में कता, इजाफा, एक हर्फ का इजाफा, और वो है हमजतुल शुरू में हमजतुल कता। हमजतुल कता। अब हमजतुल कता जो है, इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमजतुल कता हमेशा अपनी हरकत को साथ में लेकर आता, और हमजतुल कता कभी भी ड्रॉप नहीं होता। जैसा हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो जाता वैसा हमजतुल कता ड्रॉप नहीं होता। ये हमजतुल कता है बाब इफाल के अंदर इजाफा, और वो इजाफा हुआ फा कलीमे से पहले, यानी कि शुरुआत में उसका इजाफा हुआ। इसकी खुसूसियात ये है कि लाजिम को मुताद्दी बनाता है बस। जैसे एक बार की काम होता, खरजा है 3 हर्फ वाला, ये है सुलासी मुजर्रद, और ये है फेल लाजिम। वो निकला तो खुद निकला, किसी के ऊपर काम नहीं हुआ। अब इसी फेल लाजिम को मुताद्दी बनाने के लिए बाब इफाल का इस्तेमाल किया जाता, और उसको बनाने का तरीका है शुरुआत में हमजतुल खता, फा कलीमे पे सुकून, आइन कलीमे पर, आइन कलीमे पे जबर और लाम कलीमे पे जबर। तो ये खरजा से तब्दील होके बन गया अखरजा। खरजा में उसके मायने थे वो निकला, और अखरजा के मायने हो जाएंगे उसने निकाला, उसने निकाला। दूसरा है दखला, वो दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ। इसको अगर लाजिम से मुताद्दी बनाना है, बाब इफाल में लेकर जाना है, तो शुरुआत में हमजतुल खता का इजाफा करेंगे, और फा कलीमे पे सुकून, सुकून, अदखला, अदखला।
यहाँ पे उसके मायने हैं सुलासी मुजर्रद में वो दाखिल हुआ, और बाब इफाल में जाने के बाद अदखला बन गया, और उसके मायने हो गए उसने दाखिल किया, उसने दाखिल किया उसने दाखिल किया। किया। तो ये है बाब इफाल का बनाने का सांचा और उसकी खुसूसियात। अब हम इसकी गर्दान करेंगे। जी जैसे जब भी फेल आता तो सबसे पहले 4 फेल की जो किस्में तकसीम किया जाता वो 4 है। कौन सी है? फेल माजी, फेल मुजारे, मुजारे, फेल अम्र अम्र और फेल और नाहिया। नाहिया। नहीं और सबसे पहले हम बाब इफाल का फेल माजी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मुजारे पढ़ेंगे, फिर अम्र और उसके बाद नाहिया। फेल माजी की अखरजा की गर्दान हमको करना है। अखरजा है फेल माजी का वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, इसको बनाना है तस्निया मुजक्कर गायब। तो क्या इजाफा करेंगे उसके अखरजा अंदर? अखरजा, आखिर अलीफ का इजाफा हो जाएगा अखरजा अखरजा। और जमा मुजक्कर गायब के लिए अखरजू, वावली, वावलिफ अखरजू अखरजू। अखरजू के मायने अखरजू वो सब वो सब निकालते हैं, उन सब ने निकाला उन सब ने निकाला, निकाला, उन सब ने निकाला sorry। जी। खरजू के मायने होंगे वो सब निकले, अखरजू के मायने हो जाएंगे उन सब ने उन सब निकाला। ने निकाला। निकालना। अब वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा बनाना है, तो उसके लिए अखरजत, तुखरिजू अखरजत, माजी पढ़ रहे हम, अखरजत जी अखरजत। सर अखरजत वाहिद और तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा अखरजता, अखरजता अखरजता। जमा मुअन्नस गायब अखरजना, अखरजना अखरजना। अब यहाँ पर फा कलीमे पे सुकून, जैसा हम सुलासी मुजर्रद की गर्दान पढ़ते हुए आए उसी तरीके से जमा मुअन्नस गायब में फा कलीमे पे सुकून, अखरजना। और उसके आगे तो हमको सिर्फ इंडिकेटर्स लगाना है, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। तो हाजिर मुजक्कर का अखरजता, अखरजता, अखरजतुमा, अखरजतुमा, अखरजतुम, अखरजतुम अखरजती, अखरजतुमा, अखरजतुन्ना। मैंने निकाला, अखरजतु अखरजतु, हम सब ने निकाला, अखरजना, अखरजना। तो ये हो गई इसकी फेले माजी की गर्दान। तो मायने भी आपको समझ में आ गए और इसका बनाने का तरीका भी आ गया। अब दूसरा हम बनाएंगे इसका फेले मुजारे की गर्दान। फेले मुजारे बनाने के लिए जैसे बाब इफाल के अंदर एक हर्फ का इजाफा होता, और वो हर्फ कौन सा है? हमजतुल कता। अब फेले मुजारे बनाने के लिए ये हमजतुल कता को भेज दिया जाता, चाय पीने के लिए हमजतुल खता को निकाल दिया जाता, ड्रॉप कर दिया जाता। अखरजा माजी का लिए थे हमने, और इसका मुजारे बनेगा। सबसे पहले है अलामत मुजारे के ऊपर पेश, और हमजतुल खता का इस्तेमाल पहले मुजारे के सीगे में नहीं होगा। फा कलिमा है खा, उस पे सुकून, आइन कलिमा है रा, और आइन कलिमे के नीचे हमेशा जेर आएगी, जेर आएगी, और लाम कलिमे पे पेश। तो ये बन गया युखरिजू। अखरजा से युखरिजू। अब युखरिजू के मायने क्या हो जाएंगे? वो निकालता है या निकालेगा? वो निकालता है या निकालेगा? निकालता है, निकालता है। अखरजा उसने निकाला, युखरिजू वो निकालता है या निकालेगा। तो ये हो गया हमारा फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अब इसकी पूरी 14 सीगों की गर्दान बनाना है। इसका तस्निया का सीगा कैसा बनेगा? युखरिजानी, युखरिजानी। और जमा मुजक्कर गायब युखरिजूना, युखरिजूना। और वाहिद मुअन्नस गायब
تخرج تخرج تخرجت तुखरिजु। تخرج تخرج तस्निया मुअन्नस गायब تخرجان تخرجان तुखरिजानी, और जमा मुअन्नस गायब يخرجنا 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 युखरिजना, يخرجنا युखरिजना। फिर हाजिर मुजक्कर जी تخرجو تخرجو تخرج तुखरिजु, और تخرجاني तस्निया मुजक्कर تخرجان हाजिर تخرجان तुखरिजानी, تخرجان जमा मुजक्कर तुखरिजून। हाजिर تخرجون تخرجونا तुखरिजूना, हाजिर मुअन्नस वाहिद تخرج تخرجوا تخرجينا تخرجينا तुखरिजीना, تخرجين تخرجينا تخرجاني तस्निया मुअन्नस हाजिर تخرجاني تخرجان तुखरिजानी, और जमा मुअन्नस तुखरिजना। हाजिर تخرجنا तुखरिजना, أخرجو نخرجو और वाहिद मुतकल्लिम أخرجوا أخرجو उखरिजू, نخرجو और जमा نخرج نخرجو نخرجو नुखरिजू। نخرجو ये हो गया फेले मुजारे की गर्दान। مزارع इसके बाद है फेले अम्र। फेले अम्र बनाने का तरीका तो वही रहेगा जैसा हम सुलासी मुजर्रद से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जी जी सर हाजिर सीगा मुअन्नस कौन से सा लेंगे? हाजिर मुजक्कर मुजारे हाजिर हाजिर मुजक्कर मुजारे। मुजारे वो है तुखरिजू। अब तुखरिजू से फेले अम्र बनाने का तरीका, सबसे पहले लाम कलीमे पे सुकून देंगे, सुकून देंगे अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे। मुजारे हटा देंगे अब और चेक हमज़तुल करना है पढ़ने आ रहा क्या नहीं। नहीं आ नहीं रहा आ रहा तो भी नहीं आ रहा। वैसा। तो नहीं आने की उसमें हमने क्या किए थे, शुरुआत में हमजतुल वस्ल का इस्तेमाल किए थे, लेकिन यहाँ पे बाब इफ़ाल के अंदर हमजतुल खता पहले से मौजूद है, तो इसी हमजतुल खता का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। और हमजतुल खता जबर के साथ है तो यहाँ पे जबर के साथ ही इसका इस्तेमाल होगा। अब बन गया अखरिज। अखरिज अखरिज के मायने तू निकल तू नहीं। निकाल तू निकाल निकाल तू निकाल, निकाल तू निकाल। जी अब सर, इन तू दोनों में निकाल। फर्क महसूस कीजिए। यह है अखरिज और सुलासी Yes. मुजर्रद से बनेगा उखरिज उखरुज उखरिज उखरुज। उखरुज वो निकला उखरुज क्योंकि ये बाब नसरा से है, आइन कलीमे पर पेश रहेगा। उखरुज अखरिज तू निकाल, उखरुज तू निकल, उखरुज तू निकल तू निकल। उसी तरीके से ला तुखरिज अदखिल। अदखिल। अदखिल के मायने तू वो दाखिल हो दाखिल नहीं, तू दाखिल कर, दाखिल कर तू दाखिल कर उदखुल तू तूने दाखिल हो इस तरह तू दाखिल हो, तू दाखिल अदखिल तू दाखिल कर, उदखुल तू दाखिल हो। तू दाखिल हो इसके अंदर जब हमजतुल खता बाब इफ़ाल के अंदर जब आता तो यही हमको फर्क महसूस करना है सुलासी मुजर्रद के अंदर और सुलासी मजीद फी के बाब इफ़ाल के अंदर। यही हरकत पे गौर करना है, तभी हमको फर्क महसूस होगा, वरना फर्क महसूस नहीं होगा। और ये हमजतुल खता है, इसकी हरकत के मुताबिक भी समझना है ये हमजतुल खता है। इसके ऊपर आइन की मुंडी भी आ जाती बाज मुसहफ के अंदर, और बाज मुसहफ के अंदर आइन की मुंडी नहीं आती, तो इसको हरकत के मुताबिक हमको पहचानना पड़ता। यह है अखरिज तू निकाल, यह है उखरुज तू निकल, अदखिल तू दाखिल तू कर, दाखिल हो कर उदखुल तू दाखिल हो। तू दोनों में दाखिल फर्क हो। महसूस कीजिए। जी सर तो ये हो गया हमारा फेलुल अम्र। अब फेले नाहिया बनाने के लिए लाम का इजाफा ला ला हाँ। तखरुज हाजिर मुजक्कर हाजिर मुजक्कर का सीगा
मुजारे तुखरिजू है, जो सबसे पहले लाम कलीमे पे सुकून देंगे सुकून देने और वाला, शुरू में लाम अलिफ ला शुरू में ला, लाए नाहिया का इजाफा करेंगे। ला ये हो गया तुखरिज, ला तुखरिज। अब ला ला तुखरिज के मायने मत निकाल, तू मत निकाल, हाँ, शाबाश। तू मत निकाल, किसी को मत तू मत निकाल, ला तुखरिज, ला तुदखिल, तू मत मत दाखिल हो, दाखिल कर तू मत दाखिल कर। ये हो गया हमारा पहले नाहिया। तो पहले माजी हो गया, पहले मुजारे हो गया, पहले अम्र हो गया और पहले नाहिया हो गया। अब इसके फाइल बाद हो हम गया। देखेंगे फाइल, इसकी सर्फ सगीर। जी सर्फ सगीर बनाने के लिए कौन से सीगों का इस्तेमाल किया जाता? माजी मुजारे फाइल, मजदर माजी, मुजारे, मजदर, मुस्तैल, फाइल अमर, इस्मुल इस्मुल फाइल, फाइल इस्मुल मफूल इस्मुल मफूल, इस्मुल मफूल। उसके बाद मजहूल माजी, माजी मजहूल मुजारे मजहूल मुजारे मजहूल, और अम्र और नाहिया। अम्र और नाहिया। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे माजी का सीगा अदखला जो हमने बनाए थे। उसके बाद इसका मुजारे युद्ध खिलू युदखिलु, युदखिलु। अब इसका मजदर, मजदर क्या बनेगा? ईद हाँ दुखुल, दुखुल, इदखालन। यही दुखुल, बाब का नाम इसका हाँ। मजदर बनेगा। ईद खालू इदखल, इदखाल, इदखालन, इदखाल, इफ़आलुन पे इदखालुन। इद, और इसका फेलुल अम्र बनाने का तरीका, ये इस्मुल फाइल बनाने का तरीका। सर यहाँ युद्ध खिलू में से यो हटा के पर मीम लगा इफ़ालुन देंगे। बताना सर, इफ़आलुन, सर एक्सक्यूज मी, यहाँ पर इफ़ालुन कहा ना, फिर इदखालुन वो मजदर, ये मजदर है। इदखालन होगा या जी सर, खालुन, खालन ये होगा। इदखालुन है ये। हाँ लेकिन जी जब सर। हम सर्फ सगीर पढ़ते तो हमारे पढ़ने में आसानी के लिए हम इसको हालत नसब में डाल देते, ओके सर, इदखालन। इदखालन, यस इदखालन, इसका इस्मुल फाइल बनाने का है हमें। तो इस्मुल फाइल बनाने के लिए हम मुजारे का सीगा लेंगे। मुजारे का मीम या ऐड हटा के मीम लगा दे। युदखिलु से सबसे पहले या अलामत मुजारे या निकालेंगे, मीम पेश मुंह लगा देंगे और मुदखिल, आखिरी में तनवीन दे देंगे, दो पेश, दो पेश, दो पेश तनवीन दे। मुदखिल, मुदखिलुन यानी के मुदखिल, दाखिल करने वाला, दाखिल करने दाखिल वाला, होना, जी करने वाला। जी जी सर, दाखिल करने वाला, ये हो मुदखलन, गया मुदखिल, मुदखिलुन। जी और इसका इस्मुल फाइल बनाने का तरीका तो बहुत आसान है। आसान, सिर्फ लाम कलीमे की हरकत जेर निकाल के जबर जबर लगाना है। जबर, मुदखलन, खलुन, मुदखलुन, मुदखलुन, जिसको दाखिल किया गया। इसको दाखिल अब किया गया, फेले मजहूल बनाना है। जी सर, आगे उदखुल, उदखुलु, अदखला से बनाएंगे फेले मजहूल। लाम कलीमे को छीना नहीं, आइन कलीमे आइन को कलीमे को छोड़ना नहीं। जबर है तो जेर दे देंगे और उसके पहले पेश लगा देंगे, पेश देना है। तो क्या बन गया? उदखिला, उदखिला। ये उदखिला, माजी मजहूल हो गया। अब मुजारे मजहूल बनाने के लिए फिर युद्ध, युदखिलु है मुजारे का सीगा, इसको मजहूल बनाना जी। है। लाम कलीमे को छीना नहीं, आइन आइन कलीमे को कलीमे छोड़ना को नहीं, छोड़ना नहीं, जेर तो निकाल के जबर जबर लगाना लगा है देंगे, और उसके पहले युद्ध ऑलरेडी पेश है पेश, तो वो युद्ध पेश वैसे ही रहने देंगे। बन गया युदखलु। उदखिला, युदखलु। युदखलु, फिर से मसदर उदखाल, इदखाल।
इदखालन। इदखाल अब फेले अमर और फेले नाहिया, उदखिल, अदखिल, उदखिल अदखिल, नाहिया, ला ला तुदखिल तुदखिल, ला तुदखिल ला तुदखिल। ला तुदखिल। ये है इसकी सर्फ सगीर। जी सर। ला तुदखिल अदखिल, अदखला युदखिल ला तुदखिल। ला तुदखिल। युदखलु युदखलु। ये जो युदखलु है, जी सर। सुलासी मुजर्रद के अंदर अगर हम सर्फ सगीर बनाएंगे तो क्या बनेगा? यदखुलु इसका मालूम क्या बनेगा सुलासी मुजर्रद का? यदखुलु दखला यदखुलु दखला, यदखुलु यदखुलु। यदखुलु है। यस सर। इसका मजहूल बनाना है तो कैसा बनाएंगे? फुइला के वजन के साथ दुखिला। जी, तरीका क्या अच्छा रहेगा? युदख आइन कलीमे को छोड़ना नहीं, सॉरी हाँ, लाम लाम कलीमे को कलीमे को छीएंगे नहीं, छेड़ना नहीं, और आइन कलीमे को अगर पेश है तो जबर दे देंगे, और जबर या देंगे, कलीमे को पेश कर देंगे सर, पेश लगा पेश देंगे। कर देंगे। क्या बन गया? जी युदखलु ये क्या है? युदखलु तो ये और ये युदखलु सेम। मीनिंग का युदखलु क्या होगा? युदखलु। दोनों सेम कैसा हो गया? मायने आप बोलो। निकाला गया, वो दाखिल किया गया। दाखिल ये किया इसमें गया, दखला यदखुलु में जाता जो वो, है वो दाखिल किया जाता वो, गया, ये दाखिल किया जाता वो, और ये जाता वो, ये दाखिल किया गया। वो नहीं होता है क्योंकि वो लाजिम होता है, इसलिए ये उसका रुख नहीं होता है। सुलासी मुजर्रद के अंदर लाजिम है और लाजिम फेल का हाँ, मजहूल नहीं बनता, नहीं होता है। तो उसको मजहूल बनाने के लिए बाब इफाल के अंदर लाया जाता और उसको मजहूल बनाया जाता। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। ये फर्क समझ में आया? जी, क्या सर? वंस अगेन रिपीट सर। दखला जी, यदखुलु देखिए, का आपने बताया। जी आप मुझे बताइए दखला के मायने क्या है? वो दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ। माजी पास्ट टेंस। तो ये जी लाजिम है कि मुताद्दी है? लाजिम है सर। ये फेल लाजिम है। अब अगर यस लाजिम है तो जी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसको मफूल नहीं लगता, जी 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 सर, और मफूल जिस की फेल जरूरत को ऑब्जेक्ट नहीं लगता तो वो मजहूल नहीं बनता। नहीं। ओके सर, ओके। इसको लाजिम से मुताद्दी मुताद बनाने के लिए फेले बाब इफाल के अंदर लाया जाता और जी उसके सर। बाद उसका मजहूल बनाया जाता, तभी उसका मजहूल बनेगा। यहाँ पे सुलासी मुजर्रद में इसका मजहूल नहीं बनता। नहीं बनता। जी तो जी इसमें सर। सिर्फ जी कंफ्यूजन नहीं होना, इस वजह से आपके सामने बस पेश कर दिया है। आप जी एक ध्यान सर। रखिए, बच्चा रोया, जी अगर हमने कहा बच्चा रोया तो इसका मजहूल बनेगा ही नहीं। ये तो बच्चा रोया तो आपको सवाल करेंगे, रोया तो क्या रोया, किसे रोया, कुछ नहीं मिल रहा। जब तक आपको जवाब नहीं मिलता, जब तक का वो मुताद्दी होगा ही नहीं, और मुताद्दी होगा नहीं, पैसिव वॉइस होगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट नहीं जी है। जो जो वर्ब को ऑब्जेक्ट होता है उससे पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जी 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 सर। इतना ही ख्याल रखना है, क्योंकि ये जी बनाने सर। का वजह ही है, मजीद फीमेल आएगा ही उसको, कि उन्हें खुद पे काम कर रहा था, उसको हमें बनाना था ऑब्जेक्ट वाला, यानी मुताद्दी बनाना जी था। इसका कामिल मुताद्दी बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मुताद्दी के लिए जरूरत ही नहीं थी ना, आप जी जी मिसाल में लाने की जरूरत ही क्या। तो ये जी बात सर। याद रखिए कि जो भी सीगे लाजिम है उनको मुताद्दी बनाने के लिए मजीद फी के अंदर इफाल में काम ले लेते हैं। जी सर।
डन। जी सर। जो सवाल है तो पूछिए। जी। सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा युदखलू का? दाखिल किया जाता वो। दाखिल किया जाता। इसका भी जो गर्दन कर लो ना, यदखलू, यदखलानी, यदखलू ना, एक दाखिल किया जाता, दो दाखिल किए जाते, तीन जमा दाखिल किए जाते। इस तरह से भी इसकी भी गर्दानी कर लेना बेहतर है। जी सर। तुदखलू, तुदखलानी, माजी मजहूल भी नहीं बनेगा सर दखल का? दखला का माजी मजहूल भी नहीं बनेगा। उसे दाखिल किया गया ऐसे नहीं होगा सर? नहीं यहाँ पर बनेगा दाखिल किया गया वो, हाँ, या फिर हमारे पूर्ण सवाल में उसे दाखिल किया गया, हाँ। लेकिन मुजर्रद में मजहूल नहीं बनेगा। आप ऐसा बोलिए कि उसे दवाखाने में दाखिल किया गया, और अगर खुद दाखिल हुआ तो कुछ भी नहीं होता ना। जी जी सही है सही है। दखला हामिदुन, माने बोलिए। हामिद दाखिल हुआ। हामिद दाखिल हुआ। हामिद दाखिल हुआ। हमें खुद दाखिल। अदखला, दाखिल किया गया, दाखिल, उसने दाखिल किया। दाखिल किया। दाखिल किया। ये देखो दखला फेल है तो ये तीन जबर वाला है, फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का किया। सीगा। जब भी कोई फेल हमारे सामने आता तो हमें उससे दो सवाल करना है। कौन से सवाल? क्या और कैसे? क्या क्या और किसे? और क्या? किसे। तो अब ये दखला फेल से सवाल कीजिए। किसको दाखिल किया, किसने दाखिल किया? जवाब क्या दाखिल किया, किसे दाखिल? क्या दाखिल किया, किसे दाखिल किया। किसे दाखिल किया? दोनों का जवाब नहीं मिल रहा है। दोनों का जवाब नहीं है तो यहाँ पे दो पेश के साथ खुद फाइल है, इसके साथ ऑब्जेक्ट मफूल नहीं है, मफूल नहीं है इसके साथ, तो ये फेल लाजिम हो गया। अब जी यहाँ पे सर। हम लिखेंगे अदखला हामिदुन। अब इससे सवाल कीजिए, इसके मायने हैं हामिद ने दाखिल किया। दाखिल किया। अब इससे सवाल कीजिए क्या, किसे। जी सर। क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, किसे का जवाब मिलेगा? किसे का जवाब मिल रहा, तो किसे दाखिल किया। हामिद को। जैदन, हामिद ने दाखिल किया जैद को, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, मफूल आ गया। अब मफूल आ जी, गया तो ये मुताद्दी हो गया। यहाँ पे जी। ये लाजिम था और यहाँ पर ये मुताद्दी बन गया। अब ये लाजिम जी फेल है तो हामिद दाखिल हुआ। अब इसका मजहूल बनता नहीं, नहीं बनता। नहीं सर। अब अदखला, हामिद ने दाखिल किया जैद को, अब इसका मजहूल बनाना है। उदखिला। जैद को उदखिला, दाखिल किया गया ऐसे। उदखिला। अब दाखिल किया गया वो, तो कौन दाखिल किया गया। जैद। जैद दाखिल जैद। किया गया। अब इसकी एराबी हालत क्या होगी। वही पेश नाइबुल नस्बी। फाइल है। पेश आ जैदन। जाएगा नायबुल फाइल पेशा बनके, पेशा। पेश आ गया, ये नायब फाइल है। जैद को दाखिल किया गया, किसके जरिए से दाखिल किया गया, हामिद के जरिए से। हामिदन आएगा। नहीं वो हामिद अब इसमें नहीं आता, इसके अंदर अरबी में नहीं आता। जी। अरबी में यही
जो मफूल रहता वही फाइल बन के आ जाता, फाइल की किया एरानी गया हालत जो लेकर आता और उसको नाम दिया जाता नायब फाइल। ये है फर्क सुलासी मुजर्रद और बाबी फाल का। किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। और बाबी फाल सबसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ। आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे अलिफ लाम मीम से तो आपको कम से कम 10 से 15 एक ही रुकू के अंदर, 2 रुकू के अंदर आपको मिल जाएंगे अफाल इसके। जैसे अल्लजीना युमिनूना, युमिनूना बाबी फाल में है। आमाना युमिनु, नाइस फाइल ऊपर ईमानन। अल्लजीना युकीमूना, अखामा युकीमु। युनफिकुना, अनफका युनफिकु इनफाकन। युकिनूना, वो सब खर्च करते हैं। जी, युकिनूना वो सब यकीन रखते हैं, युनफिकुना वो सब खर्च करते हैं, वो सब खर्च करते हैं, युकीमूना वो सब कायम करते हैं, कायम करते हैं। युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं। और उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो मुफलिहून भी आया तो बाबी फाल से आया, उसका इस्मुल फाइल बन के। अफलाहा युफलिहु इफलाहन फहुवा मुफलिहून। तो आप उसकी सबसे रट मारो, रट्टा मारो। इसकी एक सरसगीर जरा याद करके बताओ। आप नोट कर लीजिए और उसको याद करिए। मैं एक आसान सीगा लिखता हूं यहाँ पर। नाइस फाइल समझ। अब फिक्र मत करो, बार बार ये आयतों में देख के आ जाएगा। अस्लमा युस्लिमून इस्लामन फहुवा फहुवा मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। ये मुस्लिमुन भी बाबी फाल से है। लिमा युस्लमू युस्लिमा, युस्लिमा, युस्लमा, युस्लमा, इस्लामन, फहुवा इस्लाम, मुस्लमुन मुस्लिम, मुस्लमुन। मुस्लिम, अस्लिम ला तुस्लिम, ला ला तुस्लिम। तुस्लिम। ये इसकी सरसगीर याद रखिए। जी अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लमुन, अस्लिम ला मुस्लिम, ला तुस्लिम। तुस्लिम। और इसी जी, पे बिठाएंगे आमना युमिनु ईमानन फहुवा ईमान, मुमिनुन, फहुवा मुमिन, उमिना युमनु युमिना, युमनु, ईमानन ईमानन, फहुवा मुअमनुन, मुमिन, आमिन मुमिन, ला ला तुमिन। ला तुमिन, ला तुमिन। इसके मायने क्या है? आमनु वो सब ईमान लेकर आए। वो उन्होंने ईमान लाया, वो सब ईमान लेकर आए। जी, आमीन। आमीनो तुम सब ईमान लाओ। तुम सब ईमान लाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
देखिए मेरी आप लोगों से बड़ी गुजारिश है कि मजीद सी को याद रखने के लिए फिर मैं रोज दोहराता हूँ, 4 चीजें लिख लिख कर याद करो। सबसे पहले इसका मस्दरी नाम, जैसा बाप इफ़ाल है। नंबर 2 इसका साचा, अफ़अला। नंबर 3 इसका नुमाइंदा, नुमाइंदा असलम। ये 3 हो गए। 4 इसकी सरसगे। अगर आपने ये 4 चीजों पे अगर ध्यान दिए और लिख कर करे तो होता ये है कि आप ये म्यूजिक आपका दिमाग नोट करता और इसके हरकत आपका पेन नोट करता। उससे होता ये है कि कुरान जब हम खुद पढ़ रहे हैं तो ठीक है, हम अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत की जा रही है, उसकी एक स्पीड होती है। तो तिलावत के दरमियान अगर आपको समझना है तो इसको जोर जोर से बोलने से आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये खातिब साहब जो है क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जी तो सर। आप इस पर अमल कीजिए। 4 चीजों को कीजिए। पहली चीज इसका मजदरी नाम, नंबर 2 इसका साचा, नंबर 3 इसका नुमाइंदा, नंबर 4 सरसगे। सिर्फ इतना करो, बाकी कुछ भी नहीं करे आपने। हरकत क्या रही, किधर जा रही, कुछ भी नहीं समझ रहा, खाली इतना याद करके रखिए। आपको दोनों भी काम होंगे। खैरत के अंदर से भी आपको स्पीड में समझ में आएगा, और आप पढ़ते टाइम पे तो बहुत आसान है क्योंकि तो हमको लिखना नहीं है, कुरान लिखी भी हमारे सामने मौजूद है। अगर समझो उस्लिम आएगा, उस्लिम आने के बाद उसका नायबुल फाइल आएगा पेश लेके, तो आपको जब भी समझ में आएगा ये फोइला के वजन पे है और इसके बाद में मफूल नहीं आ रहा, नायबुल फाइल आ रहा। ये पहचानने के आइडिया बना के रखो। आइडिया बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको कोई रिसर्च थोड़ी करनी है, हमको ये समझना है कि इसमें याद रखने की चीज क्या है। तो माजी में कोई परेशानी नहीं है, मुजारे में मैंने जैसा पहले आपसे अर्ज किया, तो इस पे याद रखो कि अलामत मुजारे पे पेश आती है और आइन कलीमे पे जेर आती है। मजहूर रहेगा तो आइन कलीमे पे जबर हो जाएगा। बस इतनी चीज। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर आपने अमर भी देखेंगे तो अमर में भी आपको हमजतुल खता नजर आता है। हमजतुल खता हमको बता देता क्योंकि इसके सब अमर में जबर आता है, हमजतुल खता पे जबर आता है। तो ऐसा आने वाला कोई दूसरा कुरान में है ही नहीं। तो कुछ चीजें छोटे से शॉर्ट नोट्स लिख लेना आपको, और शॉर्ट नोट्स लिखकर 1-2-4 लोगों को समझा दिए तो आपको खुद ही आ जाता। तो यानी कि इसके लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअली काम करना। बहुत ज्यादा बारीकियां पकड़ते बैठने के बजाय 5-6 चीजें अहम क्या है देख लेना। अच्छा, इसके साथ ये 4 चीजें जो बोला मैंने, इसके साथ 5वीं चीज जो याद करने की है वो है खुसूसियात। 5 चीजें अगर कोई भी बात की याद रखेंगे तो फिर आपको बहुत आसान जाएगा। क्योंकि तो कल से अब जो है एक नया बात शुरू होगा, उसके अंदर जरे और गोल गोल होगा, समझे ना। कल इंशाल्लाह बात तफाउल लेंगे, है ना, तफाउल लेकर 5वां सर लेंगे। क्लास अपलोड कर दें सर। हाँ जी बिल्कुल, जाते ही अपलोड कर देते हैं इंशाल्लाह। लास्ट हर एक क्लास नहीं वीडियो हुई सर मुफाला की। नहीं, नहीं सर, वही अपलोड है, हर चीज अपलोड है। यूट्यूब पर नहीं सर। नहीं है, आप खाली जो है ना उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, रोमन इंग्लिश वाला, मुफाला नहीं है। रोमन उर्दू में, ठीक है मैं देख लेता। वो भी डाल, अगर नहीं डालेंगे एक ग्रुप तो में भी डाल दे हम सर, डालेंगे, आसानी होगी डाल इंशाल्लाह। देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे, बेफिक्र रहिए। जी शुक्रिया सर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको जो हमारे पुराने मई की बैच के हैं, जो जो 195 वीडियोस है, उसमें भी मिलते ही। आप खाली पुराने क्या बोलते हैं, हिदाया अरबिक ग्रामर लिखने के बाद में आपके पास जो भी वीडियो आएगा उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट निकालेंगे तो उसमें 3 किस्म के वीडियोस है। एक वीडियो है मई 24 की, नंबर 2 वीडियोस है आप लोगों की उर्दू रोमन,
अब नंबर 3 वीडियोस बन रहे हैं जो अभी नई बैच चालू हुई है अक्टूबर 24, तो उसमें तकरीबन आपको 100-150 वीडियो वहां मिल जाएंगे। उसमें से आपको कितने बार रिपीट करना है करिए। अच्छा, सबको ये पढ़ा रहे हैं और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और आप में से जी किसी सर। को भी अगर डिटेल पढ़ना है तो रात को 9 बजे ज्वाइन कीजिए मंडे के दिन, 9 से 10 बजे तक का। उसमें 2 चीजें हैं, उसमें 45 मिनट्स ग्रामर है और 15 मिनट तजवीद है। उसकी लिंक डाल दें उस्ताद जी। जी लिंक डाल दें। जी। इसमें सूर्य क्योंकि बकरा फिर चल उसमें रहा ना। नहीं, सूरत बकरा तो हो गया ना, वो बैच खत्म हुई, नई बैच चालू हुई। अभी नई बैच चालू होने के बाद में अभी मुरक्कबात चालू है। जी जी। बहुत बड़ा ग्रुप ज्वाइन करा ना, 100-150 200 लोगों का ग्रुप ज्वाइन करा। चालू होके अभी ये 3 हफ्ते हुए उसको। जी उस्ताद जी। ठीक है। चलिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन।